भाई थोड़ा क्रॉस 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 में आवजो। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक हो? सलमान कार्ड माननीय राज्यपाल महोदय श्री का राष्ट्रीय सलाम सलाम में साथ गार्ड बगल साथ। श्रीमान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। विसर्जन। गार्ड विसर्जन। थैंक यू, धन्यवाद। कम से कम तो बोलता है तो यूं मेरे को क्यों बुला दिया? तो कोई कारण तो ये है कौन में, यही तो पूछा। मैं बोला था तुमके मुझे की किस्सा साहब कम से कम मैं यार तो छोटा मुदन काम दे दिया। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। राज्यपाल श्री महानुभावों विनंती। स्वाभिमान भर दे संयम सत्य स्नेह कवर दे। स्वाभिमान भर दे हम मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास गामा फिर घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। मधुमैता भगवंतिनी मैता भगवंतिनी राजरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। સૌને નમસ્કાર। આજે ધરતી એકતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ઉચ્છલ અને ઓલપાડ 84 તાલુકા સહકારી ખેતીવેચાણ સંઘના અમૃતપુટી કૃષિ જનજાગૃતિ શિબિર પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, ગુજરાત રાજ્ય સાથે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા ઓલપાડ પ્રદેશના ધારાસભ્ય શ્રી મુકેશભાઈ, આપણી કોલેજના પ્રમુખ શ્રી બળવંતભાઈ, સેક્રેટરી શ્રી વસંતભાઈ, માજી એમએલએ શ્રી ધનસુખભાઈ, ડોક્ટર કપાસને કારણ કે હડલાડી આવી એ સમયે આપણી સહકારી મંત્રીઓને ખાસ કરીને તમે જો લશ્કરી તબિયત માફીના ઉપર ગણગણાટથી આ ક્ષણને વધાવીએ। સાથે તેઓશ્રીને વિનંતી કરીશું કે આપ શ્રી હાર અર્પણ કરશો। ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ ધરતી એકતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના આપણે વધાવતા રહીશું।
વિનંતી કરીશ પુરુષોત્તમભાઈ પટેલ આવો. ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ કોલેજ પરિવાર છે ને આ વિષય પર માન્ય રાજ્યપાલશ્રીને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરશો. ખૂબ ખૂબ આ વિષયને હાર્દિક અભિવાદન છે. ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ નીતિશભાઈ ગામિત વાઇસ ચેરમેન ગરગરાથી આ ક્ષણને આપણે વધાવશું. હું વિનંતી કરીશ પિયુષભાઈ વલ્લવી પિયુષભાઈને વિનંતી કરીશું કે આપસી એવા આઝાદી સ્મારક કેળવણી મંડળ ઓલપાડના આજે આપણે ઓલપાડમાં અમારા વિધાનસભામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બધા આદરણીય મંચ ઉપસ્થિત મારા ખેડૂત ભાઈઓ અને પત્રકાર મિત્રો, દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે દેશની તમામ ખેડૂતોને આ પ્રાકૃતિક ઇમ્પ્લિમેન્ટ આદિવાસીથી એમણે શરૂ કર્યું. ત્યારબાદ ગામે ગામ જઈને અત્યાર સુધીમાં આપણે જોયું છે કે ક્યારે પણ રાજ્યપાલશ્રી હોય તો ક્યારે પણ એ લગભગ ગુજરાતની અંદર કે ગામડે જતા ના હોય. પણ મેં એક હવે રાજ્યપાલશ્રીને જોયા છે કે રાજ્યપાલશ્રી ક્યારે ને બેઠતા નથી જોયા કે આ ખેડૂતને ત્યાં હોય કે ગમે તે ગામમાં જઈને એ ખેડૂતો માટે શિબિર કરતા હોય. અને આજે રાજ્યપાલ સાહેબ ઓલપાડની અંદર ખૂબ લોકો પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા થઈ ગયા છે. આજે મારે પણ પ્રાકૃતિક ખેતીમાં કંઈ શાકભાજી જોઈતું હોય તો મારે સુરત આપણે જ સેન્ટર ખોલી આપ્યું છે આ બધા ખેડૂતો માટે. તો બધા સુરત જિલ્લાની અંદર જે પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે એને પકાવતા ખેડૂતોને વેચાણ માટેની સુવિધા આપણે જ ઉપલબ્ધ કરી આપી છે. મારે ઓલપાડમાં બી તમારા પ્રાકૃતિક ખેતી કરેલો કંઈક મારે શાકભાજી જોઈતા હોય તો મારે ઓર્ડર લખાવવો પડે ત્યારે શાકભાજી મળે છે. એટલે ઘણા બધા ખેડૂતો છે. અત્યારે હું રાજ્યપાલ સાહેબને વાત કરતો હતો. અહીંયા અમારા મનહરભાઈ મિસ્ત્રી એક ખેડૂત છે. એ મનહરભાઈનો ફર્નિચરનો ધંધો ખૂબ પ્રમાણમાં ચાલતો હતો. એને સમય જ ના મળતો હતો. પણ એની પાસે ખાલી 4 વીઘા જમીન છે. એ 4 વીઘા જમીન બી સાહેબ કાંઠા વિસ્તારના દરિયા કિનારે જમીન આવી છે. એમણે મિસ્ત્રીનો ધંધો છોડીને આ પ્રાકૃતિક ખેતી કરી અને મારા ગુજરાત રાજ્યના સેક્રેટરી બી એમના ખેતરની મુલાકાત લઈ ગયા. સારામાં સારી ખેતી પકડતો તો મનહરભાઈ પકડે છે. એ મનહરભાઈ આવ્યા છે, ઉભા થયો છે મનહરભાઈ. मनोहर सब करके छोड़ दिया सब प्राकृतिक खेती में सब लोगों को प्रेरणा देता है और सबको नई नई चीज़ें वो सिखाता है फार्मर को भी. એટલે આ ખેડૂત એવા છે કે જાતે ખેતી કરે છે અને બીજાને પણ શીખવે છે. અમારા આંધ્રી ગામના કિરીટભાઈ છે. એ કિરીટભાઈ ઊભા છે સાહેબ. આપણે એમને એવોર્ડ પણ તમે આપ્યો છે ને એવોર્ડ. એ કિરીટભાઈ પણ બીજા ગામના ખેડૂતોને શીખવે છે. અત્યારે ગત વર્ષે साहब मेरे गांव आया था. मेरे भाई केले की खेती करते हैं तो केले की खेती के अंदर उसने प्राकृतिक खेती करने को सीखा. मेरा भाई को ये किरीट भाई ने सिखाया. એટલે ખેડૂતો જાતે ખેતી કરે છે એવું નથી, એ બીજાને પણ શીખવે છે. એ પ્રેરણા જો આપી હોય તો આપણા ગવર્નર સાહેબ આપી છે. ત્યારે આજે ગવર્નર સાહેબ અહીંયા પધાર્યા છે ત્યારે હું ગવર્નર સાહેબને વિનંતી કરું છું. હું તમને ગેરંટી આપું છું દરેક ગામની અંદર સાહેબ બધા જ લોકો પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા હતા. હું એમ નથી કે 10 વીઘા પ્રાકૃતિક ખેતી કરો, પણ એમાંથી વીંગું 2 વીંગું निकालीने તમે ખેતી કરશો तो હું 100% માનું છું આપણે क्रांति आवे. साहब यहाँ हमारे यहाँ चावल की खेती यहाँ होती है तो ये चावल की खेती में लोग यहाँ 20,000-22,000 हेक्टेयर में चावल करते हैं. इसके लिए भी हमारे ये फार्मर को मार्गदर्शन दीजिए इसमें भी क्या नया कर सकते हैं. क्योंकि एक किलो चावल पकाने के पीछे 4,000 लीटर पानी जाता है. तो ये पानी भी बचेगा और चावल भी कैसे पकता है कम कीमत में वो भी आज थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए. આપણે અહીંયા સૌ લોકો આવ્યા, તમે પધાર્યા છે એ બદલ સૌનો ધન્યવાદ. ભારત માતા की जय, वंदे मातरम. माननीय श्री मुकेश भाई पटेल जी, विधायक ओलपाड़, माननीय श्री जयेश भाई पटेल जी, चेयरमैन ओलपाड़ 84 तालुका खरीद बेचाण संघ, हमारे पूर्व विधायक श्री धनसुख भाई पटेल जी,
योगेश भाई गामी जी, परसोत्तम भाई पटेल जी, श्री मनहर भाई पटेल जी, श्री प्रवीण भाई गजेरा, बसंत भाई पटेल जी, श्री महेंद्र भाई पटेल, श्री बलवंत भाई पटेल, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आप इस बात को जानते हैं कि गुजरात प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं जहां मैं नहीं गया, और मिशन है केवल अपने पशुधन की ब्रीड उन्नत करो, नस्ल अच्छी बनाओ और प्राकृतिक खेती की ओर लोगों। प्राकृतिक खेती आज समय की मांग बन चुकी है, क्योंकि आज पर्यावरण की भी समस्या है, पानी भी एक चुनौती बन गया है, और हर परिवार और घर में हम देखते हैं बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सब जगह मैं एक बात बोलता हूं, आज से 30-40 साल पहले कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ये सब बीमारियां नहीं थी। ये पानी की बोतलें भी 20 साल पहले कोई हाथ में लिए नहीं घूमता था। ये सारी बीमारियां पिछले 30-40 साल की देन है। हजारों लाखों साल से दुनिया बसी हुई है। केमिकल खेती 1960 के दशक से पहले दुनिया में कहीं नहीं की जाती थी, और जब से खेती आई है इसका लाभ हुआ, इससे इनकार नहीं हो करते, कोई उत्पादन नहीं बढ़ा हो, लेकिन नुकसान उसका ज्यादा हो गया है। धरती बंजर बन गई, लोग बीमार हो गए, पर्यावरण दूषित हो गया, और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी और बंजर धरती की व्यवस्था बना दी हमने। तो ऐसी हालत में प्राकृतिक खेती जो है उसमें किसान का खर्चा बहुत थोड़ा होता है, इसमें उत्पादन घटता नहीं है। लोगों को मैं बताता हूँ, जैविक खेती अलग है और प्राकृतिक खेती अलग है। जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, मेहनत भी कम नहीं होती और खर्चा भी कम नहीं होता। लेकिन जिस खेती का प्रचार मैं प्रदेश में कर रहा हूँ और पूरे देश में, ये प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है। ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, ये अळसिया की खेती है, मित्र कीट की खेती है। और इसमें केवल देसी गाय घर में चाहिए, उसके गोबर गोमूत्र, थोड़ा गुड़ और थोड़ा बेसन मिलाकर के हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। और इन दोनों चीजों का उद्देश्य है सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना। हमारी जो देसी गौ माता है उसके पेट में, आंतों में भगवान ने मानो सूक्ष्म जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा के भेजी है। देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया है, 1 ग्राम गोबर। और स्वस्थ देशी गाय 10 किलो लगभग छाण 24 घंटा में देती है। जब 1 ग्राम में 300 करोड़ है तो 10 किलो में कितने हुए? 30 लाख करोड़ बैक्टीरिया। और हम जीवामृत बनाकर उन सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाते हैं और फिर पानी के द्वारा, स्प्रिंकल के द्वारा खेत में भेजते हैं, और खेत में भी मेलवण का काम होकर के उनकी संख्या और बढ़ती है। वही सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन बनाते हैं और धरती में जो खनिज हैं उनको खा के पौधे का भोजन बनाते हैं। जंगल में मैं आपसे पूछता हूँ, यूरिया कौन देता है?
वहां डीएपी कौन डालने जाता है? वहां छाण बताओ कौन डालता है जंगल में? वहां पानी कौन देने जाता है? जंतुनाशक कौन देता है? लेकिन जंगल के सारे पेड़ हरे भरे होते हैं और समय पर फलों से लद जाते हैं। वहां किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां की धरती में हमने छेड़छाड़ नहीं की। वहां अळसिये का भंडार है, सूक्ष्म जीवाणु का भंडार है और वही सब कुछ उस प्रकृति में, धरती माता में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं और धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो आजकल गुजरात सरकार, हमारा कृषि विभाग और कृषि में भी आत्मा विभाग पूरे गुजरात में प्राकृतिक खेती की फ्री में ट्रेनिंग देता है। आप जिन जिन गांव से आए हैं, आप संपर्क करें कृषि विभाग के लोगों से और बड़ा आयोजन कोई करे, बड़ा। आजकल मैं जाता हूं ना गामड़ा में, तो अब आजकल मैंने एक नियम बना रखा, मैं हर दरे वीक, सप्ताह किसी एक तालुका के गांव में जाता हूं और वहां रात को वहीं रुकता हूं गांव के स्कूल में और वहीं खेडूत के बीच में मैं जनसभा भी करता हूं और पूरे तालुका के हर गांव से 50-50 किसान बुलाता हूं, जिसमें 2,500-3 हजार खेडूत हर सप्ताह मैं उनसे बातचीत करता हूं, तरीका बताता हूं खेती बाड़ी। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि अपने इस क्षेत्र में, तालुका में बड़ा आयोजन करो जिससे विचार लोगों में जाए। अब तो मनहर भाई आपके बीच में है, दूसरे भाई का भी बताया अभी आपके बीच में, जो प्राकृतिक खेती करते हैं और इन्होंने सिद्ध कर दिया इसमें घाटा नहीं है। अभी विधायक जी ने मेरे को बताया, हमारे यहाँ चावल की खेती करते हैं, आप डांगर की खेती, डांगर बोलते हैं ना? हाँ, तो मैं तो बहुत खेती करता हूँ डांगर की। मैं हर साल लगभग 125 एकड़ में डांगर की खेती अपने घर पे करता हूँ और प्रति एकड़ ध्यान करो, प्रति एकड़ में 30 से 32 क्विंटल डांगर पैदा करता हूँ, 32 क्विंटल। आप में कोई करता ही था ना? और मैं अपने खेत में एक बूंद यूरिया नहीं डालता, एक बूंद डीएपी नहीं डालता, मैं न जंतुनाशक डालता हूँ। केवल ये जो प्राकृतिक पद्धति है, जीवामृत, घनजीवामृत डाल करके खेती करता हूँ। और जो आपकी तरह रासायनिक खेती करते हैं ना, मेरे पड़ोस में भी वहाँ, उनका खर्चा प्रति एकड़ 20 से 22 हजार रुपये आता है। आपका कितना आता है एकड़ में? इतना ही आता होगा यहाँ पे। और अगली बात, मेरा खर्चा प्रति एकड़ 2,000 रुपये आता है, उनका 20 से 22 हजार, मेरा 2,000। अगली बात, वो पानी 100% प्रयोग करते हैं और मैं पानी 50% प्रयोग करता हूं। समझ में आई? और वो 28 से 30 क्विंटल 20-22 हजार में खर्च करके पैदा करते हैं और मैं 2,000 खर्च करके 30 से 32 क्विंटल पैदा करता हूं। उनका चावल जो खाएगा कैंसर होगा, हार्ट अटैक होगा, डायबिटीज होगी, अस्पताल में जाएगा जो पैसा, और मेरा चावल खा के ओलंपिक में पहलवानी करेगा। फर्क नहीं है बात। और मेरी जमीन उपजाऊ बनेगी। मैं जीवन देने का काम करता हूँ, पानी बचाता हूँ, खर्चा भी नहीं होता। और उसका कारण क्या है आपको समझना चाहिए। प्राकृतिक खेती में जिन दिनों वर्षा काल होता, उन्हीं दिनों डांगर होता है ना, उन दिनों जर्म कीटाणु वैसे ही बहुत हो जाता है। तो हमारे प्राकृतिक खेती में
वो बैक्टीरिया गौ माता के पेट से जो छान है उसका गौमूत्र है और उसमें हम गुड़ और बेसन मिला के उस प्रोटीन देते हैं, उनको बलवान बनाते हैं। वो इतने ज़्यादा बढ़ते हैं पानी के समय में कि उसमें तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। आप करके देखो अब की बात। आप ये जो मनहर भाई दूसरे करते हैं इनसे सीखो। ये कतई गलत धारणा है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन घटेगा। हमारे 5 आयाम है खेती करने के। बीजामृत से बीज संस्कारित करना और घन जीवामृत बनाते सूखी खाद जो गोबर घर में बच जाता है उसमें जो जीवामृत बनाते वही मिला के रख देते हैं, उसको घन जीवामृत बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। और हम एक समय अनेक फसल बोते हैं खेत में, एक ही फसल नहीं बोते और धरती में आच्छादन मल्चिंग करते हैं। ये इतने तरीके हैं प्राकृतिक खेती करने के। तो हमारे जो ट्रेनर हैं वो गांव-गांव के अंदर फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। पूरे गुजरात में 3-3 गांव के हमने क्लस्टर बना दिए। उसमें कृषि सखी हैं, किसान मित्र हैं, वो आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो आप बड़े जागरूक लोग हैं, आप तो सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, आपका परिचय लोगों में है, तो उनको प्रेरित करो, अधिक से अधिक उनको समझाओ कि भाई आने वाली पीढ़ियों को यदि उपजाऊ जमीन देनी, धरती में पानी छोड़ना और हवा शुद्ध रखनी है तो ये जहर वाली खेती को छोड़ना पड़ेगा। आप लोग इसीलिए डरते हैं कि उत्पादन कम हो जाएगा। वो जैविक खेती में कम होता, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं जो बात करता हूँ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये जैविक खेती नहीं है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। जितने सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे, जितना अड़सिया बढ़ेगा, जितने मित्र कीट धरती में बढ़ेंगे, वो अपने आप धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा देंगे। जब धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ना बीमारी आएगी, न उत्पादन कम होगा। बीमारी किन को लगती? जो कमजोर होते हैं, आदमी है या पशु है, यही फसल का नियम है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि अपने पूरे खेत में नहीं कर सकते, कम से कम इतना खेत में शुरू करो, ट्रेनिंग लेके 5 आयाम पूरे करके, जो आप अपने बच्चों के लिए खिला सकते हो, अपने लिए कर सकते हो। आप घर में कम से कम खुद तो बीमारी से बच जाओ। ये जहर कम से कम खाना चाहिए। आज हालत क्या बन गई, पशुओं में भी कैंसर आ गया है। हमारा दूध आज ही फ्रंट पेज पे अखबार में आई है, पत्रिका अखबार में, 13 लोग आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों दूध पीने से मर गए। इतना जहर उसमें है, दूध पीने से इतनी मिलावट। और उसमें लिखा, पूरा रिसर्च देके, कि 46% दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, जहर पाया गया। वही माँ पीती है, बच्चों को भी वही पिलाया जा रहा। आज कैसे स्वस्थ रहेंगे लोग, इसकी चिंता कौन करेगा? आप जैसे समझदार लोग यदि इस दिशा में लोगों को प्रचारित नहीं करेंगे तो आप कितना भी धन कमा लो, वो सारा अस्पताल में चला जाएगा और दुख अलग भोगना पड़ेगा बीमारी का। और ये पर्यावरण, धरती सब बंजर बना दी हमने। इन सब के लिए आप सब भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस समय प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, हमारा कृषि विभाग पूरे गुजरात में प्राकृतिक खेती के मिशन को रात दिन बढ़ाने के काम पे लगा। और उसका परिणाम इस समय गुजरात में 8 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं।
और उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी शहरों में हो दिन पर दिन बढ़ाई जा रही है। जितने भी तालुका से लेकर जिला स्तर के शहर हैं, इन सब में मार्केट की व्यवस्था बना रहे हैं ताकि प्राकृतिक खेती वाला किसान अपना सामान बिचौलिए से हटके सीधा बेच सके, ताकि उपभोक्ता को भी शुद्ध चीज मिले और किसान को भी पूरा लाभ मिले। ये भी काम सरकार के द्वारा बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। भाई मुकेश पटेल विधायक जी से भी मेरा निवेदन है, चेयरमैन साहब जयेश भाई से भी, कि कार्यक्रम इसको विस्तार में ज़्यादा लोगों के बीच में जाए, ये विचार। इस तरह से ये आयोजन फिर कभी आप करेंगे तो मैं आऊँगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप बड़े प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप इस प्राकृतिक खेती के विचार को एक जन आंदोलन बनाओ। और गीता में लिखा, महाजनों ये न गता सपन था। बड़े लोग जो रास्ता अपने लिए चुनते हैं, छोटे लोग उस पर अपने आप चलते हैं। आप जिम्मेदार लोग हैं, आप अपने अपने खेतों में इसको करो। जब आप करेंगे, सफलता मिलेगी तो दूसरे अपने आप बदल जाएंगे और इससे एक अच्छे समाज की बात रचना होगी और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ निरोग बनेगी। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं जयेश भाई पटेल को और हमारे योगेश गामित जी और दूसरे साथी हैं, उन्होंने आपको बुलाया और एक विचार आपके तक मैंने छोड़ना था कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जो पर्यावरण को भी बचाएगी, पानी को भी बचाएगी, देसी गौ माता को भी बचाएगी और लोगों के स्वास्थ्य को भी बचाएगी और किसान की आय इसलिए बढ़ाएगी क्योंकि इसमें खर्चा नहीं। और देश का 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जाता है एक साल में यूरिया डीएपी खरीदने में। यदि हम प्राकृतिक खेती की ओर आएंगे तो देश का ये धन बचेगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रात और दिन 24 घंटा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे, इस देश को विकसित भारत बनाने में लगे। यदि हम ये 2.5 लाख करोड़ बचा दें तो देश के विकास में सहयोग होगा कि नहीं होगा। और ये नहीं होगा जो इस रासायनिक खेती से बीमारियां फैलती हैं, अस्पतालों के खर्चे, आदमियों का कष्ट, वो तो 8-10 लाख करोड़ का बजट है देश में बीमारियों का। अब 2.5 वो और 10 वो 12.5 लाख करोड़ यदि ये देश का बच जाए तो अपने आप ना विकसित हो जाएगा भारत। हम इसमें सहयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सारे लोग मिलके ईमानदारी से इस पद्धति का सही प्रचार करेंगे तो इसमें सबका बहुत कल्याण होगा। आप इस गर्मी में दोपहरी में आए, इसके लिए आप सबका अभिनंदन। और इस प्राकृतिक खेती मिशन को जनमानस तक बढ़ाइए, सबको इसका सुख मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। બંને મહાપુરુષોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। આપણા વડોદરા વિધાનસભાના હેતુ ધારાસભ્ય મુકેશભાઈ પટેલ સાહેબ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ આપશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। भारत माता की उपस्थित आप सौनो पण हाँ नमस्कार पटेल। कैसे हो? अच्छा, किरीट पर।
सब आप प्राकृतिक कृषि में ये सब आप अपना बनाते हैं? अपना सब बनाते हैं। जब तो गुजरात का सरकारी बायो सभी गाँव में ये भेजो अपने घर से केड़ा फरिए जो अरे और ये सब बहुत बढ़िया निकला है। अपने खेत में सब प्रयोग किया है, सभी का बहुत बढ़िया निकला। ये मेरे बेगन हर तीसरे दिन 100 के 20 के देता हूँ। वहाँ मैं पैसा देता हूँ। और यहाँ तहसील में सभी किधर देखो उधर। ये हमारे ये अभी नए नए किसान हैं, वो अपने मॉडल काम, तो ये सब मेरा है। ये आपका है? हाँ, ये सब मेरा है। ये सब सभी प्राकृतिक पूरी तरह से। ये मेरा प्रकृति मैंने संशोधन में रखा है। बाकी बताइए जी, ले जाइए जी। बहुत बढ़िया है, मीठा है। वाह वाह। और ये अपना केले का फल है, ये बैंगन है, सभी बहुत बढ़िया है। अपने खेत का है? अपना खेत का है। इसमें तो बहुत बीमारी आती है। नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं अभी लोन का छिड़काव करता हूँ, लोन पाता हूँ, तो ऐसी टका कुछ आता ही नहीं। अभी का सफ़ेद मही आती है, तो उसके लिए अपने 1 रुपये का एक अजमास्त्र बनाता हूँ। उसके लिए उसके अजमास्त्र में क्या क्या डालते हो? हींग, हरदर और अजमा और गौमूत्र में बनाता हूँ, तो आजीवन मैले देती रहती है। आज गोमूत्र में बना- गौमूत्र का आजीवन पकाते मैले। हो उसको? नहीं नहीं, वो छून के 48 घंटे उसको रखने का गोमूत्र है। में छोड़। हाँ, उसके बाद मात्रा किस अनुपात से डालते जैसे मानो आपको बनाना है तो 50-25 लीटर पानी में 50 ग्राम अजमा, 80 ग्राम हींग, 80 ग्राम हरदर, उसको 48 घंटे हो? बराबर बराबर सब चीज बराबर। नहीं, सारा कुछ बराबर नहीं, 50 ग्राम अजमा लेने का है, 80 ग्राम हींग लेने की है, 80 ग्राम हरदर लेने की है। उसको 48 घंटे वो सब पानी में या गौमूत्र में भिगो के रखो। गोमूत्र में ज्यादा अच्छा है। अच्छा, गौमूत्र में आजीवन वैल्यू देती रहेगी। पानी में 6 महीने। अगर जो गौमूत्र में बनाए तो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। और 15 लीटर पानी में आपको उसमें से 600 ml ही लेना चाहिए। ज़्यादा लोगे तो मेरे कपास में पौधे डिवेले का था, वो जल गया था। इससे सभी किसानों को मैं बताता हूँ। देखो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट वाह किरीट भाई ये जिंदाबाद। आपने सबको बनाया है। ये हमारे नए नए किसान हैं, अभी कृषि सखी में है और अपने खेत में पूरी तरह से ये देखो ना, इसके ऊपर ये ना रूमटा सा हल्का सा ऊपर, ये प्राकृतिक की पहचान है। हाँ उसमें नहीं होगा जो जहर बने। सर जी, ये अपनी गेहूँ की फसल में ये अंतर पाक में बनाए थे। हाँ, वाह वाह, ये भी है बहुत अच्छा। ये अपना चावल में से भैया है। सर मेरे 8 साल से हमारी गौशाला है और वहाँ पे हम लोग ये राइस बना रहे उसका फोटो वाला भाई सब्जी भी बना रहे हैं, लेकिन वो हमारे स्टोर पे देखते हैं और पूरा ब्रांडिंग किया हुआ है। वाह, बहुत ही अच्छा। ये टमाटर आपके हैं? चले भाई चलो। कोई बीमारी नहीं आती। तो ये लोग तो कहते हैं जहर डालना पड़ेगा। सब किसान आते हैं। धन्यवाद। भाई, कोई बात नहीं। एक बीघा में बनाया, हाँ? 1 बीघा में बनाया। बारिश की वजह ये क्या है? से उसका अवसर निकलता है। सर ये है, उनकी लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है और प्राकृतिक कृषि में सब साबुन बनाया। नाम क्या है उसका? गेसो मार्केट में हाईएस्ट बेचान करती है। हाईएस्ट मार्केट में। गेसो मार्केट आया हमारे हूँ स्टॉल पे भी आए थे। आया था मैं आपके। बहुत हाईएस्ट सेलिंग है। मेथी की सब्जी और चौलाई को बहुत भाजी पाला वो बनाया। बहुत अच्छा करो। आप लोगों को जीवन देते हो। हैं? पहली बार बनाया, 1 महीने में 33 मन बना। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा कम हुआ है। इस चावल का क्या नाम है? सूर्यमुखी गोल्ड करके एक चावल का जी सर, हमारे यहाँ ये क्या है, चावल की खेती है, तो सभी किसानों के घर उसमें उसको क्या बोलते हो, अर्सी आती है, लेकिन उसमें उन्होंने जीवामृत पाया। अभी भी फसल है उनके खेत में, उसके खेत में अर्सी नहीं आई। आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती। तो अमृत है ना। और सूरत शहर में ये दूध बेचने खुद अपना दूध बेच करके जाते थे। कितनी गाय आपकी? अभी हमारे पास जर्सी गाय है, लेकिन अभी वो आज दूध वाली हमारा जो गाय रखेंगे ना, जो किसी के कुछ काम की नहीं होगी, वो अपनी यहाँ पे रहेगी। लेकिन उनमें आप वो करिए ना, सरसों के सेवन अपना ब्रीड बनाओ, इससे उन्नत बनाओ। तो सही है, तो क्या करना है, जो गाय घूमती है अरे घूमने वाली भी लाभकारी होगी। अब तो उसमें एम्ब्रियो रखवा दो तो उससे बच्चे आएंगे। हाँ वही कर। गोबर घूम
सभी किसान हमारे विश्व मार्केट में आते हैं। हाँ बाजार में बेचते हो? विश्व मार्केट में आते हैं। ये ऐसे बनाते हैं? लोग खरीदते हैं? कहाँ कहाँ रहते हैं बहन? लावाछा। बड़े पैसे रुपये में गलास वाला प्राकृतिक है। सभी फसलों का सब्जी सभी फसलों का बहुत ही बढ़िया उन्होंने અમે ત્રણ ગામમાં તાલીમ પણ આપી છે સર ત્રણ ગામમાં गांधी जी रुपए ग्रुप में खड़े उनको भेज दो या तो